Today's topic is, as I said you, it is about the flash intercooling. Okay. First of all, I would like to show the diagram and then I will read the slide. So this is the diagram first of all. So let's see how it is different from the earlier case actually. Okay. In the earlier case, it was two-stage compression with flash gas removal. Okay. Earlier it was two-stage compression system with flash gas removal, but however now it is with flash intercooling. So there is a difference actually. Okay. Now let us try to see the previous diagram once again. Okay. You can see it here. This is the previous diagram which we discussed in the last class, and it is a schematic diagram of a two-stage system with flash gas removal. So you can see it here. It is with flash gas removal. So what is happening here? There is some flash gas which is generated during the expansion process from 6 to 7. You can see it here, it is 6, this is 7. So there is some flash gas, as you can see here. It is generated at this particular point, and what we did, we separated out here at point number 3, and we only allowed the liquid to go to the next stage. So it was about the flash gas removal. Okay, and it is the flash gas which is generated during the expansion process. So you should be clear about the two things. And what we did with this flash gas at state point 3 was mixed with the superheated refrigerant vapor which was coming at state point 2, and we got the state point number 4 and then we compressed it. Okay, this was about the flash gas removal. This was the last case, and today we are going to discuss about compound compression or two-stage compression with flash gas intercooling. So let us see how is it different from the this particular case. So this is the diagram actually. Now you see it here. Once again, I would like to start from the point number 5 actually. Now, point number 5 is at the exit of the condenser. So 5 is actually saturated saturated liquid. So it is saturated liquid at this particular point, and what we are doing, this liquid has a mass which is equal to m2, which is leaving the condenser, and then a part of it is passed through the expansion valve here, and the remaining mass m1 is sent to the next stage. Okay, so basically one part is expanded, which is equal to m2 minus m1. So this is m2 minus m1, which is expanded out up to point number 6. You can see it is state point 5 here. Okay, and the mass is m2 minus m1. This is the mass m2 minus m1. This is expanded up to state point 6 up to a pressure which is equal to pi, and this pi is the pressure of the flash chamber. This is the pressure of the flash chamber. Mind it, it is pressure between the evaporator pressure and the condenser pressure, some intermediate pressure it is. Whereas the remaining mass, which is equal to m1, now you see, still here the state is 5 only. So this m1 is expanded from state number 5 to state number 7. Okay, so m2 minus m1 is expanded from 5 to 6, whereas only mass m1 is expanded from state number 5 to 7 actually. So 5 to 7. So basically the mass m1 is expanded from directly from condenser pressure to the evaporator pressure, whereas the mass m2 minus m1 is expanded from condenser pressure to the evaporator pressure, whereas the mass pi. So I hope this much is clear to you. And then what is happening? So now let us focus on state point 7 actually. Okay, 7 is the entry to the evaporator. Here the refrigerants takes place heat from the surrounding
or load from the surrounding. So let us say this value is equal to QE. Okay, and it leaves in the saturated state, saturated vapor state at state point 1. So let us see how the process looks like. So from 7 to 1, it is happening in the evaporator at pressure PE. Okay, and we get the state point 1. Why we are getting, why it is heated is because there is certainly some load QE dot which is going into the refrigerant. From 1 to 2, we have the low pressure compressor. So it is LP compressor. So the refrigerant is compressed from state point 1 to state point 2 in the LP compressor. So up to this particular point. Now you see what we are doing to this refrigerant. We are directly taking this refrigerant to the flash chamber. Okay, so what will happen? So when it goes into the flash chamber, if you see the state point 2 is at which state? State point 2 is superheated state. This is superheated state. Okay, so when it will go into the flash chamber, you can see it is, we are making it to enter into the saturated liquid refrigerant because at state point 6, you can see this 6 has two parts. Once again, let us try to understand this part also. This 6 has two parts. One part is here. Okay, one part is here and other part is here. So what is happening? This state point 2, when comes in contact with this part, which is, let us say this is 6 dash. So this is nothing but here this liquid is at state 6 dash and the vapor which is generated at 6. Here we have point number 3. Okay, this is vapor refrigerant on the top of the liquid refrigerant. So now we are adding more refrigerant which is superheated at state point 2, and where we are taking it, we are leaving it inside the saturated liquid refrigerant. So what will happen? This refrigerant will be cooled up to state point 3. So from 2 to 3, this refrigerant is cooled. So it is some sort of intercooling arrangement. Like in case of two-stage compression, we used to have a separate arrangement for cooling the air actually. Here what we are doing, we are cooling the refrigerant superheated vapor from state 2 to 3. So what will happen? There will be generation of the vapors once again because of this much cooling actually. So this refrigerant which is equal to M1 in mass, this is M1. This M1 refrigerant will reach to state point 3, but along with it there will be some generation of the refrigerant from the liquid because we have taken out the heat which is the D superheat. So between 2 to 3, if you will see this value, this is D superheating of the refrigerant vapor which is leaving the compressor, low pressure compressor actually. Okay, so we are D superheating. So when we are D superheating, so certain amount of the refrigerant will be evaporated. So that would be added to this mass M1. So the total mass at 3 will be M2 actually, and M2 is actually greater than M1. M2 is greater than M1. Okay, because M1 is a part of M2 only. Okay, so don't say think that I have put a arrow here. It is just to show that M2 is greater than M1, but the arrow for the direction of the flow of the refrigerant is from 5 to 6 only. Okay, and once the refrigerant is at state point 3 now, at this particular point, it is passed to the high pressure compressor HPC, high pressure compressor, and compressed to state point 4. After that, it goes to the condenser where the pressure is PC. Okay, and it is condensed as a saturated liquid at state point 5, and this pressure is PI.
So I have explained you the process, how this cycle is working actually. So I hope this is clear to you. If it is not clear to you, you tell me, I will explain you once again. If anybody has any question about it, you can ask. So Yes. as we can see that once the refrigerant enters the flash chamber Mm-hmm. and it get mixed with the refrigerant coming from compressor first, Correct. it goes to point number 3 as well as point 6 dash. 3 is vapor and 6 dash is saturated liquid. Correct. But if I look into the graph, I can see that the line is extended even further in the subpooled region. So what is that? Is that like No, is no, no, that no. the graph or like See, actually, when I have drawn this diagram, probably that mistake might have happened here. okay, But the cycle is from 1 to 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. So okay, from 6, it is coming towards 3 actually. So this line is not there. Okay, this is not there. This is just for showing the pressure actually. This is the intermediate pressure only. Okay, okay, clear, sir, clear. okay. So I hope this is clear to you. Now, now let us try to read. Okay, what is flash intercooling? Yes. सर एक बार ये 5 टू जो 7 जो ये जो एक्सपेंशन हुआ ये एक बार आप थोड़ा सा दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दो. Okay, I will explain the diagram once again. But let us read what we have written earlier in the slide actually. See, for flash intercooling, the compressed vapor from the lower stage are led and bubbled through the liquid in the flash chamber. तो सिंपल सी बात है, देखो जैसे हमने सपोज एक कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है और बाहर से हम उसके अंदर एयर भेजें, तो अगर हम एयर डालेंगे तो वहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लैश चैम्बर में हम रेफ्रिजरेंट जो कि सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट है उसको डाल रहे हैं लिक्विड रेफ्रिजरेंट में. तो एक तरह से बबलिंग हो रही है. बबलिंग में क्या हो रहा है, वो बबल सुपर हीटेड था, लेकिन क्योंकि वो ठंडे रेफ्रिजरेंट से मिक्स हो रहा है, ठंडा मीन्स मतलब वो सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट के बराबर. क्योंकि लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर या सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सेम है. ओके, लेकिन क्योंकि कुछ इसको ठंडा किया हमने सुपर हीटेड स्टेट से सैचुरेटेड वेपर स्टेट तक, तो कुछ कुछ जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो भी सैचुरेटेड वेपर बन जाएगा. ओके, एक तो बात ये हो गई. तो आगे क्या लिखा है, द वेपर्स आर दस कूल्ड टू द सैचुरेशन टेम्परेचर एट द प्रेशर ऑफ द फ्लैश चैम्बर. तो फ्लैश चैम्बर के प्रेशर पे जो टेम्परेचर है टी, उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है टी. ओके, तो सैचुरेटेड वेपर जो है जो सुपर हीटेड वेपर है वो सुपर हीटेड सैचुरेटेड वेपर बन जाएगा फ्लैश चैम्बर के प्रेशर पे. एंड ए पार्ट ऑफ द लिक्विड evaporates which goes to the higher stage along with the vapors from the lower stage. So this is basically what is happening during the flash intercooling. So now let us move to the next slide. I will explain you once again. Now you see this diagram actually once again. Now, what is happening here? Somebody was asking how this process from 5 to 6 is taking place. See, the refrigerant which is coming out from the condenser is at state point 5. If you see the pH diagram, state point 5 is nothing but the saturated liquid. I hope this is clear to you. Now, the mass of the refrigerant at state point 5 comprises of two parts actually. So, what are those two parts? These two parts are actually M1 and M2 माइनस M1. सो मैंने इस टोटल मास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक M1 है और एक M2 माइनस M1 है, दो पार्ट है. तो आई थिंक अगर आप इसको ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा M2. तो ये टोटल मास जो है यहाँ पे स्टेट नंबर 5 पे M2 है. तो अब हमने क्या किया, जो M2 माइनस M1 मास है, M2 माइनस M1 मास को मैंने पास किया ये वाले एक्सपेंशन वॉल्व में से, इस एक्सपेंशन वॉल्व में से, जो कि सिर्फ इस मास को M2 माइनस M1 मास को
कहाँ तक ले जाएगा? प्रेशर पीसी से प्रेशर पीआई पे ड्रॉप करेगा। ओके, यहाँ पे ड्रॉप करेगा। लेकिन जो M1 मास है, वो M1 मास को क्या हो रहा है? M1 मास को हम ड्रॉप कर रहे हैं इस एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू प्रेशर पीसी से पीई तक। यहाँ पे प्रेशर कितना है? पीई। तो M1 मास जो है वो पीसी से पीई तक ड्रॉप हो रहा है। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू नो, या कोई और क्वेश्चन भी था? सर मींस जो ये सेपरेशन होगा M2 हम्म माइनस M1 मास एंड M1 मास का, हम्म ये नॉर्मल सिंपल पाइपलाइन से होगा या फिर कोई स्पेशल अरेंजमेंट है बीच में कि एक परसेंटेज डिसाइड है जो फर्स्ट एक्सपेंशन वॉल में जाएगी एंड द रिमेनिंग वन गोज टू द सेकंड See, एक्सपेंशन वॉल? actually, naturally, there has to be some arrangement, and that arrangement will be based on the load which we are giving here. The load which we are supplying here is QE. Okay, so we have a particular value of the mass which is required at the pressure P, and that mass is actually M1. Okay, into, now what is the exit state point from the evaporator? It is H1 minus it is H7. So this is the refrigerating effect. Okay, so basically here to make you understand, if we have this particular value, suppose I say that this QE is equal to 1 TR. 1 TR is 3.5 kilowatts, and these enthalpies H1 and H7, these are known to me. Why known to me? Because if I know the condenser pressure, if I know the evaporator pressure, then I know the enthalpy at this particular state. I know the enthalpy at this particular state. मतलब 1 और 5 पे मुझे एंथैल्पी पता है, और 5 की जो एंथैल्पी है वो 6 के भी बराबर है और 7 के भी बराबर है। तो मुझे इसका मतलब है H1 और H7 दोनों पता है, अगर मेरे को इवेपोरेटर का प्रेशर पता है और कंडेंसर का प्रेशर पता है। ठीक है, तो H1 और H7 पता है। हमें मालूम है कि कितना कूलिंग लोड मेरे पास है, मैंने यहाँ पे 1 TR कह दिया इसको, तो इसका मतलब मुझे पता है कि मुझे कितना मास जो है इवेपोरेटर से पास करना है। तो बेसिकली नेचुरली कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होगा। वो कंट्रोल कहाँ से आ रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो कंट्रोल जो हो रहा है, ये जो एक्सपेंशन डिवाइस है ना, उस एक्सपेंशन डिवाइस की वजह से होता है, क्योंकि एक्सपेंशन डिवाइस दो काम करता है। एक तो प्रेशर को ड्रॉप करता है, दूसरा मास फ्लो रेट को रेगुलेट करता है। ओके, तो नॉर्मली जो सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन तरह की हम एक्सपेंशन डिवाइसेस की बात करते हैं। एक है कैपिलरी ट्यूब, दूसरी है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, और तीसरी है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये तीन तो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एक्सपेंशन डिवाइस हैं। बट एक्चुअली में जो आजकल सिस्टम आते हैं उसमें, बड़े सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहा है तो इसका मतलब वो सेंस करेगा कि हमें यहाँ पे इवेपोरेटर पे मास कितना चाहिए। तो बेसिकली उस बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होगा कि कितना मास जो है इस इवेपोरेटर में जाएगा, और M2 माइनस M1 कितना जो है फ्लैश चैम्बर में से पास करेगा। ओके, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, सर यस। सर फ्लैश गैस रिमूवल वाले सिस्टम में भी इंटरकूलिंग तो हो रही थी, उसमें भी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था। थोड़ा सा डिफरेंट था एक्चुअली में। ठीक है, सर, वो अगर तुम देखोगे, अब यहाँ पे क्या है, जो रेफ्रिजरेंट स्टेट पॉइंट 2 पे है, देखो 2 पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट है जो लो प्रेशर कंप्रेसर से बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे ये स्टेट है इसकी। ये स्टेट क्या है? ये सुपर हीटेड स्टेट है। तो हमने क्या किया, ये जो रेफ्रिजरेंट है इसको डुबो दिया उस फ्लैश चैम्बर के अंदर जो लिक्विड है उसमें जाके। उस डुबोने से क्या हुआ, ये लिक्विड जो है किस टेम्परेचर पे है, ये फ्लैश चैम्बर के अंदर पीआई प्रेशर जो है उसके उसका जो सेचुरेशन टेम्परेचर है उस पे है। कहने का मतलब ये है, अगर ये पूरा का पूरा टेम्परेचर, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की, इस पे टेम्परेचर अगर मैं कहता हूँ कि से 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो यहाँ पे 2 पे जो टेम्परेचर है ना, हो सकता है 2 पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो। तो हम क्या कर रहे हैं, अब एक एक सिंपल सा केस लो, देखो मेरी बात सुनो। आप लोगों ने स्टीम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हम एक बाल्टी ले लेते हैं। ठीक है, उस बाल्टी के अंदर मैंने क्या करा, पानी रखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ठंडा पानी है। कैसा पानी है? ठंडा पानी है, सैचुरेटेड वाटर है। ठीक है,
कि और उसमें प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, 20 डिग्री पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो सकता, लो होगा। अब हमने क्या किया, मेरे पास सुपर हीटेड स्टीम है सेम प्रेशर पे, मैंने क्या किया उस सुपर हीटेड स्टीम को एक पाइपलाइन के थ्रू पानी के अंदर डाला, बिल्कुल ऊपर नहीं डाला, पानी के अंदर डाला, तो क्या होगा, वो सुपर हीटेड स्टीम जो है वो सैचुरेटेड स्टीम बन गई, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। अब ये जो कूलिंग हुई सुपर हीटेड स्टीम की, ये किससे हुई, ये जो 20 डिग्री पे ठंडा पानी था ना उससे हुई है। लेकिन क्योंकि कुछ हीट जो डी सुपर हीटिंग के टाइम पे रिलीज हुई सुपर हीटेड स्टीम से सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, वो भी तो पानी को मिल गई। तो कुछ पानी जो है सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर, जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो M2 था, सॉरी स्टेट पॉइंट 2 पे मास था मेरे पास M1 था, और यहाँ पे कितना मास इवेपोरेट हुआ, यहाँ पे इवेपोरेट हो गया मेरे पास M2 माइनस M1। ये इस पर्टिकुलर स्टेट पॉइंट पे M2 माइनस M1 जो है यहाँ पे इवेपोरेट हो गया। तो टोटल मास कितना हुआ, यहाँ पे जो स्टेट पॉइंट 4 है यहाँ पे मेरे पास मास हो गया M2। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो अब आपको बात समझ में आती है कि नहीं? सर मैं पूछ रहा था जो ये 5 to 7 जो स्ट्रेट एक्सपेंशन हुआ है उसकी हाँ वजह से हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो गया है, लेकिन जो फ्लैश गैस रिमूवल था हाँ। उसमें हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ज़्यादा मिल रहा था। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। अब अच्छा पहले ना एक चीज नोटिस कर लेना, एक तो तुम देखो प्रोसेस 1 to 2, ठीक है, अपने दिमाग में बसा लो, फिर प्रोसेस देखो 3 to 4। तो 1 और 3 जो स्टेट है ना, ये दोनों सैचुरेटेड स्टेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो कंप्रेसर में लो प्रेशर कंप्रेसर है उसमें सैचुरेटेड वेपर जा रहा है, फिर हाई प्रेशर कंप्रेसर है उसमें भी सैचुरेटेड वेपर जा रहा है, ठीक है। अब मैं पिछले डायग्राम पे चलता हूँ। अब देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखो अब तुम लोअर स्टेज में जो एंट्री है कौन से पॉइंट पे है, यहाँ पे एंट्री है पॉइंट नंबर 1 पे, और हायर स्टेट में हायर प्रेशर कंप्रेसर में एंट्री कहाँ पे है, पॉइंट नंबर 4 पे है। 4 देखो क्या है, 4 जो है सुपर हीटेड वेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसर वर्क ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी ज्यादा है, दोनों ज्यादा है, क्योंकि मैंने कूलिंग जो है स्टेट पॉइंट 9 से किया था 8 से एक्सपेंशन के बाद। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि इस केस में जो है स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो गया, क्योंकि पिछले केस में 9 से 1 तक हो रहा था। अब की बार 9 तो है ही नहीं, यहाँ पे हम जो है पॉइंट नंबर 7 आ गया इस वाले केस में, ठीक है। और लेकिन इस वाले केस में मेरे को एडवांटेज क्या मिला, ये देखो, इस वाले केस में पॉइंट तो 7 पे आ गया, लेकिन अब जो है यहाँ पे ये पॉइंट जो पहले 4 यहाँ पे था इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये अब 3 पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो बेसिकली अब क्या हुआ है, कंप्रेसर वर्क कम हो गया है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी कम हो गया, कंप्रेसर वर्क भी कम हो गया, ठीक है। तो दोनों चीजों पे फर्क पड़ा है, लेकिन इट इज ए बेटर सिस्टम, क्योंकि इसमें कंप्रेसर वर्क कम हो गया। और कंप्रेसर वर्क कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जब उनको सुपर हीटेड स्टेट में हीट करते हैं, सुपर हीटेड स्टेट में कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेसर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया में जो ये लाइन होती है कंप्रेशन वाली, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वाली, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये डायग्राम है और ये इंटरमीडिएट प्रेशर है, और अगर अमोनिया को मैं यहाँ से कंप्रेस कर रहा हूँ तो ऐसे लाइन जा रही है, अगर मैं यहाँ से कंप्रेस करना हो तो लाइन ऐसे जा रही है। अब बताओ कि अगर मैं थोड़ा दूर से कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा, कंप्रेसर वर्क कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो अमोनिया सिस्टम होता है उसमें इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो अभी बेसिकली तुम ये समझने की कोशिश करो, एक पहले वाला सिस्टम था जिसमें हमने फ्लैश गैस को रिमूव कर दिया था, जो कि एक्सपेंशन के बाद मिल रही थी। यहाँ पे हम जो है फ्लैश गैस को उस तरह से रिमूव नहीं कर रहे, बल्कि हम जो फ्लैशेस जनरेट हो रहे हैं कंप्रेशन के बाद उसको ठंडा कर रहे हैं सैचुरेटेड स्टेट तक। तो ये फ्लैश इंटरकूलिंग है बेसिकली। ये क्या है, ये फ्लैश इंटरकूलिंग है, फ्लैश गैस रिमूवल नहीं है। ओके, तो ओके सर, ओके। पहले ये समझने की कोशिश करो। अब तुम्हें एक तीसरा सिस्टम दिखाता हूँ जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। अल्टीमेटली जो हमने यूज करना है वो दोनों की कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम को यूज करना है। हाँ तो देखो अभी उसमें मैं
फ्लैश चैम्बर से एक्सपेंशन करवा देते हैं। हाँ देखते हैं, अब अगला सिस्टम तुम लोगों को दिखाता हूँ जिसमें फ्लैश गैस रिमूवल भी है और फ्लैश इंटरकूलिंग भी है, दोनों को मिक्स करके अब एक सिस्टम है। एक्चुअली में जब भी हम यूज करेंगे वही वाला सिस्टम यूज करेंगे। अब देखता हूँ, वो लेके जाता हूँ आपको उस पर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे स्लाइड में आप इसको पढ़ लेना, जो मैंने अभी आपको बातें बोली हैं वही यहाँ पे लिखी हुई है एक्चुअली। एक चीज आपको और बता रहा हूँ, ये वैसे आपको लास्ट टाइम भी बता दी कि इंटरमीडिएट प्रेशर कितना होना चाहिए। इंटरमीडिएट प्रेशर आपको बताया था कि इंटरमीडिएट प्रेशर शुड बी इक्वल टू पीसी इंटू पीई उसका स्क्वायर रूट। यहाँ ये जो है, या इंटरमीडिएट प्रेशर या रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन द स्टेजेस इज आर विच इज इक्वल टू पीसी बाय पी रेज टू पावर 1/n। व्हाट इज एन इज द नंबर ऑफ स्टेजेस। अगर दो स्टेज हैं तो पीसी बाय पी का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो 1/2 हो गया। तो इस तरह से हमें मिल गया, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा यही आएगा कि पी आई बाय पीई इज इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाय पी आई, मीन्स द प्रेशर रेशियो बिटवीन द टू स्टेजेस इज सेम। सो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो पी आई की वैल्यू क्या आएगी, पी सी इंटू पी। ये इंटरमीडिएट प्रेशर है विच इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू फॉर द दीज टू प्रेशर्स। ओके, अब एक्चुअली में ये तो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो दिस गिव्स ए बेटर वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट प्रेशर। ये इसमें क्या किया है हमने, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पे ऊपर तो कंडेंसर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे इवेपोरेटर टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया। तो ये जो है एक तरह से एक इम्पेरिकल रिलेशन है। पहले वाला तो कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन ये इम्पेरिकल है। कैसे इम्पेरिकल है, it is seen that the discharge temperature of the low stage is much lower than the discharge temperature of the higher stage. Therefore, the pressure ratio of the lower stage can be increased with a corresponding reduction in the pressure ratio of the higher stage. तो लोअर स्टेज का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है, किसके टेम्परेचर से, डिस्चार्ज टेम्परेचर ऑफ द हायर स्टेज। देखो दोनों से डिस्चार्ज हो रहा है तो लो स्टेज का टेम्परेचर काफ़ी लो है, डिस्चार्ज टेम्परेचर हाई स्टेज का ज़्यादा है। तो ऐसा करने से जो इंटरमीडिएट प्रेशर मिलता है, इस इक्वेशन को यूज़ करने से जो इंटरमीडिएट प्रेशर मिलता है उससे सीओपी ज़्यादा आती है, ऐसा देखा गया है। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअली में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन जो है दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब अब मैं बात करता हूँ कंप्लीट मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम की। फिर वही बात है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं सीधा आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ। अब इस डायग्राम को देखो। अब ये जो डायग्राम है, ये दोनों जो पहले हमने सिस्टम पढ़े हैं ना, उनका कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखो, यहाँ पे वही कंडेंसर से ही शुरू कर रहा हूँ मैं। कंडेंसर पे मेरे पास रेफ्रिजरेंट जो निकल रहा है वो सैचुरेटेड लिक्विड है स्टेट पॉइंट 6 पे। जो भी टोटल मास है उसको मैंने, ये जो है फ्लैश चैम्बर, ये फ्लैश चैम्बर है FC, आई एम कॉलिंग इट एज FC स्टैंड्स फॉर फ्लैश चैम्बर। इस फ्लैश चैम्बर में से पास किया। ये फ्लोट वाल्व लगा हुआ है, ये हमारे पास फ्लोट वाल्व है। तो देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ द लिक्विड इन दिस फ्लैश चैम्बर। तो पहले मैंने क्या करा, पहले रेफ्रिजरेंट को, ये जो एक्सपेंशन वाल्व है, जो भी रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आ रहा था पूरा का पूरा मैंने फ्लैश चैम्बर में डाल दिया। तो इसको जैसे ही मैंने फ्लैश चैम्बर में डाला, इसके दो पार्ट हो गए। दो पार्ट कौन कौन से हुए, कि कहाँ पे निकला था, ये 7 पे निकला था। तो 7 के दो पार्ट हैं। कौन से पार्ट है, एक 7 का, ये 7 के दो पार्ट हैं, एक है सैचुरेटेड लिक्विड और दूसरा है सैचुरेटेड वेपर। तो ये दो पार्ट हो गए इसके। ठीक है, पिछली बार भी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो सेपरेटली मेरे से फ़ोन पे बात कर ले, या कैसे भी समझना है तो पूछ लेना, मैं समझा दूंगा कि कैसे हुआ है ये। ओके, तो ये जो है प्रेशर क्या है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर है फ्लैश चैम्बर का PI। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको तो नीचे की स्टेज में ले गए और उसको मैंने फिर से एक एक्सपेंशन डिवाइस में से पास कर दिया और उसके बाद इवेपोरेटर से पास करा। तो मुझे इवेपोरेटर में जो भी हीट लोड था उसकी वजह से ये निकला स्टेट पॉइंट 1 पे। और स्टेट पॉइंट 1 क्या है,
ये एक सैचुरेटेड वेपर है। तो सैचुरेटेड वेपर कंप्रेसर में जा रहा है। कौन से कंप्रेसर में? लो प्रेशर कंप्रेसर में जा रहा है। तो लो प्रेशर कंप्रेसर में जाने के बाद इसका डिस्चार्ज कौन से पॉइंट हुआ? 2 पे हुआ। अब ये 2 पे हमने क्या करा? अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, दोनों सिस्टम को क्लब तो कर दिया ये, लेकिन एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे एक वाटर इंटरकूलर लगा रखा है। जैसा कि कई बार आपने सुना होगा ना कि जब हम रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है, मल्टी स्टेज है, तो वहाँ पे हम बीच में इंटरकूलिंग करते हैं, परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो बेसिकली वो परफेक्ट इंटरकूलिंग कैसे आएगी? वो वाटर से ही आती है। तो यहाँ पे हमने वाटर इंटरकूलर लगाया। वाटर कोई रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स नहीं हो रहा, ये सेपरेट है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो वाटर का टेम्परेचर अगर यहाँ पे कम है रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से, अब देखो यहाँ तो लो टेम्परेचर की स्टेज है, वैसे ये लो टेम्परेचर की स्टेज है, लेकिन अगर हम अमोनिया यूज़ करते हैं ना, अगर मैं अमोनिया यूज़ कर रहा हूँ एज ए रेफ्रिजरेंट, तो यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है कि 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और वाटर का टेम्परेचर हो सकता है कि से 30 डिग्री सेल्सियस है या 35 डिग्री सेल्सियस है। तो हम वाटर से भी इसको कूल कर सकते हैं अमोनिया को। तो बेसिकली क्या हुआ, जब हमने वाटर से इंटरकूलिंग की तो अमोनिया का टेम्परेचर जो है 60 डिग्री से हो सकता है 35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। तो स्टेट पॉइंट 3 मिल गया मुझे। कुछ मेरे को एक्सटर्नल कूलिंग करने से ये फ़ायदा हो गया कि अमोनिया का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया, अमोनिया एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो जितना सुपर हीटेड होता है उसका कंप्रेसर वर्क अ, उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैचुरेटेड वेपर तक लाएं उसको, ताकि उसका जो कंप्रेसर वर्क है जब वो कंप्रेसर में एंटर करे और कंप्रेस हो तो उसका कम वर्क जो है कम से कम रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे 3 पे भी इसको कंप्रेसर में नहीं भेजा। हमने इस अमोनिया को कहाँ पे किया? हमने इसको इंटरकूलिंग करने के लिए इस फ्लैश चैम्बर में लिक्विड में डाल दिया। तो क्या होगा, कुछ लिक्विड जो है इस अमोनिया को स्टेट पॉइंट 3 से 4 तक कूल करने के लिए, मतलब सुपर हीटेड है, स्टेट पॉइंट 3 भी सुपर हीटेड है। तो यहाँ पे सुपर हीटेड स्टेट्स को ये ले आएगा अमोनिया को स्टेट पॉइंट 4 पे। तो 4 क्या है? सैचुरेटेड अमोनिया की स्टेट हो जाएगी। और क्योंकि कुछ कूलिंग हुई है सुपर हीटेड अमोनिया की, तो कुछ जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो कि यहाँ पे स्टेट पॉइंट 8 पे है, वो भी इवेपोरेट होके सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड वेपर बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से स्टेट पॉइंट 4 पे हमें जो है टोटल मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट जो है मिलेगा, जिसको हम पास करेंगे हाई प्रेशर कंप्रेसर में से, HPC। HPC स्टैंड्स फॉर हाई प्रेशर कंप्रेसर, और इसको कंप्रेस करके कंडेंसर में से पास करेंगे। ठीक है। क्या कोई एंटर होना चाहता है क्या? यस। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लो। क्लियर है सर। क्लियर है। तो ये 2 स्टेज कंप्रेशन, देखो इस सिस्टम का नाम क्या है? 2 स्टेज कंप्रेशन विद फ्लैश गैस रिमूवल, वाटर एंड फ्लैश इंटरकूलिंग। तो 3 चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। फ्लैश गैस रिमूवल कर रहे हैं। फ्लैश गैस रिमूवल कहाँ पे कर रहे हैं? ये जो 7 पे फ्लैश गैस मिली थी हमें, उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, हम वाटर इंटरकूलिंग कर रहे हैं, वो ये रही। और तीसरा जो है यहाँ पे जो है ये हम रेफ्रिजरेंट को, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में जाके डाल रहे हैं, तो ये फ्लैश इंटरकूलिंग कर रहा है। 3 चीजें यहाँ पे हो रही हैं। बेसिकली कोई भी जो हमारा सिस्टम होगा मल्टी स्टेज, वो इसी तरह का होगा। ना तो वो सिंपल फ्लैश गैस रिमूवल होगा, और ना ही वो सिंपल फ्लैश गैस इंटरकूलिंग होगा। ठीक है, तीनों चीजें होंगी, फ्लैश गैस रिमूवल, वाटर इंटरकूलिंग और फ्लैश इंटरकूलिंग। वाटर इंटरकूलिंग को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वाटर इंटरकूलिंग बेसिकली उसी रेफ्रिजरेंट के लिए यूज करेंगे जिसका कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर से भी, सराउंडिंग वाटर के टेम्परेचर से भी हाई हो जाता है। अदरवाइज हम इस वाटर इंटरकूलिंग को छोड़ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है 2 to 3, ये जरूरी नहीं है, ये वाटर इंटरकूलर जरूरी नहीं है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द रेफ्रिजरेंट विच यू आर यूजिंग, बट अदरवाइज बाकी 2 चीजें जो है वो हमेशा यूज करेंगे।
इसको यूज करने से दोबारा सुन लो फायदा क्या मिल रहा है, वाटर इंटरकूलिंग यूज करूँ ना करूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो पॉइंट नंबर 6 था, अगर मैं सिंगल स्टेज में होता तो मुझे सीधा यहाँ पे आना पड़ता, ठीक है, ये पॉइंट होता, और इवेपोरेटर से बाहर यहाँ पे निकलता और सीधा का सीधा यहाँ से कंप्रेस होके यूं जाते और यहाँ पे। तो इसमें क्या होता, इसमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम मिलता और कंप्रेसर वर्क बढ़ जाता, तो सीओपी बहुत डाउन चला जाता। हमने इसमें क्या करा है, हमने एक तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे, पीआई प्रेशर पे लिक्विड और वेपर को सेपरेट आउट कर लिया, लिक्विड को हम पॉइंट नंबर 8 पे ले आए हैं और अब हमने एक्सपेंड किया इसको पॉइंट नंबर 9 तक। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ लिक्विड मिल रहा, लिक्विड गया और ये जो है मुझे कूलिंग इफेक्ट मिला, और कंप्रेसर वर्क भी जो है कम हो गया, क्योंकि अब मैं पहले 1 से 2 तक जा रहा हूँ, फिर 2 से 4 तक कूलिंग कर रहा हूँ और फिर 4 से 5 पे जा रहा हूँ। तो ये जो एरिया है, ये एक्स्ट्रा एरिया था कंप्रेसर वर्क का, ये नहीं मुझे देना पड़ रहा। तो कंप्रेसर वर्क जो है टोटल दोनों स्टेजेस में कम हो गया है, फ्लैश इंटरकूलिंग और फ्लैश गैस रिमूवल की वजह से। तो बेसिकली कंप्रेसर वर्क कम हुआ और स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ गया। तो ये एक परफेक्ट सिस्टम है अपने आप में। तो इसका सीओपी हमेशा ही हाई मिलेगा आपको इन कंपैरिजन टू बोथ द प्रीवियस सिस्टम्स जो हमने डिस्कस किए हैं। किसी को कुछ पूछना है? ओके ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और जहाँ तक एनालिसिस की बात है, एनालिसिस के ऊपर अभी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनालिसिस इसका करना नहीं आएगा पेपर में भी, क्योंकि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप बना रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा आपको कोई सोचने की बात नहीं है। बट यू शुड नो कि हम इस सिस्टम को यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। पर्पज़ आप लोगों को, यस, पीपीटी मिलेगी, मिल जाएगी इसकी वाली क्लास में? आप लोगों को ये मैं वीडियो दे रहा हूँ ना मैं, बाकी जहां तक पीपीटी की बात है, पीपीटी में कुछ नहीं है। देखो बेसिकली तो क्या है, डायग्राम है। अगर आप लोगों के पास सीपी अरोड़ा की बुक है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस चैप्टर की आपको जो है पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। उस पीडीएफ में से पीपीटी में कुछ नहीं लिखा, पीपीटी में मैंने, अगर आप देखोगे ना, जो सीपी अरोड़ा की बुक में दिया हुआ है मैंने एज इट इज लाइन टू लाइन वही उठा के यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं किया, बिल्कुल वही है। ओके, रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड करना ही करना है, ठीक है। वो तो तू सब्सक्राइब कर लो, अपने आप आ जाती है। ओके ओके, अच्छा, ये आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो कोई इसमें सिर्फ डायग्राम है और पीएच डायग्राम और आपको जो है स्कीमेटिक डायग्राम पता होना चाहिए। ओके, और बेसिकली अब जो एग्जामिनेशन भी आपके हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इसका एनालिसिस तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, इसलिए मैं एनालिसिस की बात भी नहीं कर रहा, जस्ट आपको बता दिया है कि ये सिस्टम क्या है। ओके, तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। सर सारे क्वेश्चन का तो ऑब्जेक्टिव है। हाँ, मोस्टली ऑब्जेक्टिव ही है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। ओके, ऑब्जेक्टिव ही होंगे, मुश्किल नहीं है पेपर। ओके ओके ओके, सर रेफ्रिजरेंट तक ही आएगा ना? हाँ रेफ्रिजरेंट से भी आएगा। ओके, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा, ये कुछ लाइनें में पढ़ रहा हूँ और एक आपको एक सिस्टम दिखा दूंगा ये वाला बस, या इसको दोबारा नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। वैसे क्या लिखा हुआ है कैस्केड सिस्टम में, यूज ऑफ ए सिंगल रेफ्रिजरेंट इन ए सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल, जो सबसे पहले साइकिल हमने पढ़ी थी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर इज लिमिटेड बाय फॉलोइंग रीजंस। मतलब अगर हमने लो टेम्परेचर पे जाना है, ओके, लो टेम्परेचर मतलब एक सिंगल स्टेज अगर हम यूज करते हैं, जैसा कि हमारा विंडो एसी है या रेफ्रिजरेटर है, तो उसमें टेम्परेचर -20 -25 तक होता है इवेपोरेटर का, और बाकी कंडेंसर टेम्परेचर तो आपको पता है वो तो एम्बियंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें उससे भी ज़्यादा लो टेम्परेचर पे जाना है, सपोज मैं कहता हूँ कि -45 है, -50 है, -60 है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं सिंगल स्टेज के सिस्टम में, जो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था सैचुरेटेड सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला ये हो सकता है कि अगर आप एक सिंगल रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि इतने लो टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई हो जाए, तो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट की पॉसिबिलिटी है। दूसरा है कि जितना हम लो टेम्परेचर पे जाएंगे,
प्रेशर को क्या होगा, एक्सट्रीमली लो हो जाएगा इवेपोरेटर में। अच्छा, जब लो होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो प्रेशर है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे भी लो चला जाए। और आपको पता है कि हमने जब रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो मैंने साफ साफ बोला था कि इवेपोरेटर में जो प्रेशर होना चाहिए ना वो एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जाते हैं, जितना नीचे जाएंगे गैस उतनी ज़्यादा फैलती है, रेफ्रिजरेंट उतना फैलता है। ठीक है, तो अगर 1 किलोग्राम रेफ्रिजरेंट है तो अगर उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 मीटर क्यूब चाहिए, तो वहीं 0.5 बार पे अगर वो पहुंच गया ना तो हो सकता है वो 3 मीटर क्यूब की वॉल्यूम चाहिए होगी। तो कंप्रेसर का साइज हमें बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए ये है पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा सिस्टम बनाना, क्योंकि लार्ज सक्शन वॉल्यूम हो जाएगी इफ हाई बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट इज सिलेक्टेड। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मान लो मैं कहता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आप सिस्टम ऑपरेट करना चाहते हो -40 पे, क्योंकि मुझे -40 की रिक्वायरमेंट है। तो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 0 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग है, जैसे ही -40 पे पहुंचेगा तो हो सकता है कि इवेपोरेटर में प्रेशर 0.2 बार हो जाए। 0.2 बार का क्या मतलब है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लार्ज सक्शन वॉल्यूम हो गई, कंप्रेसर का साइज बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इन द कंडेंसर इफ लो बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट इज सिलेक्टेड। अब आप कहोगे ठीक है जी, मैं तो हाई बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट लेता ही नहीं, मैं तो ऐसे ही रेफ्रिजरेंट लूंगा जो कि -40 ही उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो, तो वहां पे इवेपोरेटर का प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा। ठीक है, ले लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अब कंडेंसर का प्रेशर तो एम्बियंट के हिसाब से है ना, एम्बियंट तो भाई 40 डिग्री है, तो आपका सिस्टम -40 से +40 के बीच में वर्क करेगा। तो कंडेंसर का प्रेशर का क्या होगा, अब कंडेंसर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से तो समझदारी की, बट भगवान ने तो पहले ही एक चीज ये फिक्स कर रखी है ना, कंडेंसर प्रेशर। तो कंडेंसर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, इवेपोरेटर प्रेशर 1 बार है, कंडेंसर प्रेशर हो सकता है कि 10 बार हो जाए, तो प्रेशर रेशो कितनी होगी, 10 हो गई। अभी आपको ये सिस्टम पढ़ा किस ले रहे हैं, मल्टी स्टेज में यही तो पढ़ाया है कि जैसे ही प्रेशर रेशो 4 या 5 से ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज पे चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी सिंगल स्टेज में। फिर क्या है, वही लिखा हुआ पॉइंट, वेरी हाई प्रेशर रेशो एंड देयरफॉर लो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जितनी ज्यादा प्रेशर रेशो बढ़ती है, आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उतनी लो हो जाती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लो होती है, मास फ्लो रेट लो चला जाता है, कैपेसिटी डाउन चली जाती है, बहुत सारा इफेक्ट इफेक्ट ही सारा यही पड़ता है। उसके बाद क्या है, जब लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करोगे तो डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ एनी मैकेनिकल इक्विपमेंट एट लो टेम्परेचर। जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जो है हमें मैकेनिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट करने में डिफिकल्टी आएगी। आपको पता होना चाहिए, जैसे आजकल इंडिया और चाइना का थोड़ा सा वॉर का सीन चल रहा है, वॉर तो नहीं हो रही और ना ही हो तो अच्छा है। अब लद्दाख में अभी आजकल क्या टेम्परेचर जाएगा, -50, -55, -60, इस रेंज में चला जाएगा। अब हमने वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को क्या किया हुआ है, इंडियन सोल्जर्स को हमने गन्स दे रखी हैं या और भी चीज़ें, टैंक्स दे रखे हैं, जिन टैंक्स को उस टेरेन में उस जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस है। तो जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर उन टैंक्स को और उन गन्स को या और भी जो एम्यूनिशन है उसकी टेस्टिंग -60 पे नहीं करेगा तो वहां पे इंडियन सोल्जर जो है मर जाएगा, क्योंकि उसके सामने वो बंदूक चलेगी नहीं, वो टैंक चलेगा नहीं। तो ये सारी रिसर्च जो है यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। और कैसे करते हैं, अब अगर हमें ये चीज को, उस गन को वहां पे बैटल फील्ड में चलाना है, लद्दाख में चलाना है, तो पहले उसको यहाँ पे -60 पे टेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक कैस्केड सिस्टम की जरूरत होगी। इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कैस्केड सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा। अभी ये मतलब उस लो टेम्परेचर की जरूरत होगी। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और बताता हूँ कि कैस्केड सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैस्केड सिस्टम में क्या है, हमारे पास दो जो सिंपल स्टेजेस है ना, एक तो ये पहले ग्रीन वाला सिस्टम देख लो, ऊपर वाला, ये वाला, ये ऊपर वाली स्टेज है। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसको बोला है हाई टेम्परेचर सर्किट और नीचे वाले को बोला है लो टेम्परेचर सर्किट। ठीक है, तो ये जो है
दो अलग अलग सर्किट हैं जिनको मैंने जोड़ दिया, क्लब कर दिया। नीचे वाले सर्किट में कुछ रेफ्रिजरेंट अलग यूज करूंगा, ऊपर वाले में कुछ और यूज करूंगा। तो यहाँ पे इवेपोरेटर में मेरे को टेम्परेचर मिल जाएगा -60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और देखो मैंने दो सर्किट को अलग अलग रखा हुआ है। नीचे वाले सर्किट में मैं यूज कर लूंगा CO2, ऊपर वाले सर्किट में मैं यूज कर लूंगा अमोनिया, NH3। ठीक है, अमोनिया को यूज कर लिया। तो दोनों को यूज करके मैंने -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस कर लिया। अभी आज इसकी वर्किंग नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और, एक इसका एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि कैस्केड सिस्टम को हम यूज कहाँ करते हैं। देखो अभी जो सारी डिफिकल्टीज की बात कर रहा था मैं, ये डिफिकल्टीज हैं। सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इन द कंडेंसर है, हाई प्रेशर रेशो है, डिफिकल्टीज हैं मैकेनिकल ऑपरेशन में। तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए मेरे को एक कैस्केड सिस्टम की जरूरत पड़ी। कैस्केड सिस्टम में मैंने दो सर्किट जो है सिंगल स्टेज के, उनको जोड़ दिया, दोनों में रेफ्रिजरेंट अलग यूज किए, और मैं लो टेम्परेचर पे पहुंच गया। अब आप लोग पूछोगे कि सर हम अभी मल्टी स्टेज थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया था, उसको ही क्यों नहीं यूज कर लेते। मल्टी स्टेज यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, मल्टी स्टेज अगर मैं जैसे यूज करता हूँ ना, मल्टी स्टेज में तो एक ही रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है, दो तो हो नहीं रहे। तो क्या होगा, प्रॉब्लम वही आएगी कि मान लो कंडेंसर प्रेशर बहुत हाई है, और तुम्हें मल्टी स्टेज में भी तो टेम्परेचर हमें लो ही चाहिए ना, -40 -50। -50 अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो एक ही रेफ्रिजरेंट के साथ कर रहा हूँ। तो आपको क्या सर, कंप्रेसर तो मैंने दो लगा दिए दो कंप्रेसर, लेकिन क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट एक ही है उसकी ऊपर वाले कंप्रेसर का ऑयल जो है हो सकता है निकल के नीचे वाले इवेपोरेटर में पहुंच जाए, और उतने लो टेम्परेचर पे, उस लो टेम्परेचर पे हो सकता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, इवेपोरेटर में कूलिंग में डिफिकल्टी आए। तो इसलिए जो हम क्या करते हैं, दोबारा सुन लो इस पॉइंट को, देखो दो कंप्रेसर हैं आपके पास, एक लो प्रेशर कंप्रेसर है, एक हाई प्रेशर कंप्रेसर है मल्टी स्टेज में। तो क्या होगा, आपको पता है कि रेफ्रिजरेंट दो तरह के होते हैं, या तो मिक्स रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो जाएगा ऑयल, और दूसरा केस ये होता है कि रेफ्रिजरेंट के साथ ऑयल मिक्स ही नहीं होता। अगर मान लो मिक्स हो गया, ठीक है, और नीचे चला गया, नीचे वाले सर्किट में गया रेफ्रिजरेंट ऑयल के साथ में, अब क्या होगा, ऊपर वाले कंप्रेसर का ऑयल जो है इवेपोरेटर में पहुंच गया। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाई टेम्परेचर पे तो ठीक है मिक्स रहा, लेकिन हो सकता है नीचे वाले टेम्परेचर पे जाके वो सेपरेट आउट हो जाए। तो सेपरेट होकर वो कहाँ पे सेटल हो जाएगा, इवेपोरेटर में सेटल हो जाएगा। इवेपोरेटर में सेटल होने से क्या होगा, वो हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम करेगा, और ऊपर हो सकता है वापस उस कंप्रेसर तक पहुंचे ही ना। तो इसलिए भी हम मल्टी स्टेज को प्रेफरेंस नहीं देते। ओके, हम जाते हैं कैस्केड सिस्टम में। कैस्केड सिस्टम क्या है, कैस्केड सिस्टम में हम दो सिस्टम बनाए हुए हैं। ये देखो, एक तो रेड लाइन में सिस्टम शो करा हुआ है, और एक ग्रीन लाइन में सिस्टम शो करा हुआ है, और बीच में हमने एक कैस्केड कंडेंसर लगाया हुआ है। कैसे लगाया हुआ है, देखो जरा ध्यान से, इसके ऊपर फोकस करो। यहाँ पे मुझे कूलिंग मिल रही है इवेपोरेटर में, यहाँ पे मैंने कूलिंग ली, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को इस कंप्रेसर में कंप्रेस किया। लो टेम्परेचर सर्किट का जो कंप्रेसर है, लो टेम्परेचर कंप्रेसर, इसमें इसको कंप्रेस किया, फिर ये यहाँ पे गया, ये स्टेट पॉइंट 2 जो है, यहाँ पे एक कैस्केड कंडेंसर है। अब एक्चुअली में आपको कि सर ये कैस्केड कंडेंसर क्या है, आपको पता है सिंगल स्टेज में अगर इवेपोरेटर है तो उसका कंडेंसर है। तो ये जो रेड लाइन शो की हुई है, ये वाली, ये ये जो है लो टेम्परेचर सर्किट का कंडेंसर है, और ऊपर वाले सर्किट की जो ग्रीन लाइन शो करी हुई है, ये इसका इवेपोरेटर है। तो ये जो टेम्परेचर है, अगर यहाँ पे अगर -60 नीचे इवेपोरेटर में ले रखा है, और यहाँ पे सपोज करो मैंने 5 डिग्री सेल्सियस कंडेंसर का टेम्परेचर है, तो यहाँ पे इवेपोरेटर का टेम्परेचर हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस हो। तो ऑटोमेटिकली हीट जो है नीचे वाले सर्किट से इसके इवेपोरेटर में जाएगी, फिर उसके बाद हम इसको कंप्रेसर में डालेंगे, कंप्रेसर से अगले कंडेंसर में जाएगा, ये हीट यहाँ से बाहर फेंकेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कूलिंग होगी। तो अभी मैं ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं कर रहा, इसको दोबारा आपको समझाऊंगा